everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of the daily news analysis. आज है 5th August 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. So the first article that we're going to be discussing is in the next 10 days we are going to be celebrating Independence Day. तो Independence के जो invites होंगे उनमें कुछ changes किए हैं and let us see what are these changes. Okay, so the changes that they have is what is the theme of this particular celebrations this year. It is Operation Sindoor. So they can ask you कि इस बार जो Independence Day था, what was the central theme? Okay, and we know Operation Sindoor के बारे में जो May 7th में हुआ था, that was with regard to attacking या हमारा जो response था with regard to the Pahalgam terror attack. So ये है major theme. Further than that, Central Vista image जो usually invitation card पे होता है, ये replace किया गया है by the Chenab railway bridge. Okay, so this is India's, or you can say world's highest railway arch bridge that we talk about. तो प्रधानमंत्री ने recently इनको inaugurate किया है. And where is this located? The bridge is located in Jammu and Kashmir. और जो various posters and banners होंगे, it will also mention Operation Sindoor. Now let us quickly also see with regard to the other important bridges in India. This is very important as one-liners in your exam. So let's see. तो अभी हमने चेनाब ब्रिज देखा है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है. सो बिल्कुल ये ऐसा कुछ ब्रिज दिखता है. Okay, so this is the bridge that we talk about, the railway arch bridge. Then there's Anji Card, which is the India's first cable stayed rail bridge. तो बिल्कुल ये ऐसा एक ब्रिज है, ठीक है, that we can see. This is also located in Jammu and Kashmir. The next bridge that we talk about is Sudarshan Setu. Sudarshan Setu is India's longest cable stayed bridge. और ये कहाँ पे है? This is in Gujarat. Similarly, ये वाला जो है ये rail bridge है, ये वाला is just a bridge. Okay. Then we have the new Pamban bridge that is connecting from Mandapam in Tamil Nadu to island जिसका नाम है पंबन, पंबन आइलैंड. और पंबन का दूसरा नाम है रामेश्वरम, रामेश्वरन. ठीक है. सो दीज आर द टू रीजन्स ऑफ 2 पॉइंट्स इट इज कनेक्टिंग. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वर्टिकल लिफ्ट है, जैसे कि आपने टावर ब्रिज देखा होगा लंदन में, या the Golden Gate if you talk about in US, or even the Orson Bridge, okay, that is connecting Denmark or Sweden. So that is a vertical bridge that we talk about. Next, the Dhola Sadia Bridge, which is Bhupen Hazarika Setu भी कहते हैं. This is the longest bridge in India. ठीक है, this is the longest bridge in India जो आसाम में located in Assam, spanning the Brahmaputra river. Then we have Atal Setu. Atal Setu is India's longest sea bridge. Okay, sea bridge in Maharashtra, India's longest bridge. So these are some important aspects that we see. Important bridges के बारे में यहाँ पे questions आ सकते हैं. So please take it down. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया है कर्तव्य भवन. ओके, एंड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज ऑल्सो शिफ्टेड इन दिस कर्तव्य भवन. सो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज. ये कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का पार्ट है. दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग दैट हैज बीन इनॉग्रेटेड. ओके, और ये कल इनफैक्ट इनॉग्रेट होगा. ऑलराइट, दिस इज कमिंग अंडर द सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्लान. नाउ व्हाट इज द सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्लान? दिस वाज एनविसाज्ड इन द ईयर 2019. ओके, और यहाँ पे जो द मेजर बिल्डिंग्स इंडिया गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होते हैं न्यू दिल्ली में, उसका यहाँ पे रीडेवलपमेंट प्लान था ये. सो दिस इज एनविसाज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. हम देखते हैं कि ये जो राजपथ है, इफ यू सीन इंडिया गेट ऑल द वे टू द प्रेसिडेंट्स बिल्डिंग, हम देखते हैं ये जो राजपथ कहते हैं इसको, इसका नाम भी चेंज हुआ है टू कर्तव्य पथ. ओके, राजपथ बिकॉज इट शोज अबाउट लाइक यू नो रूलर, राइट. तो वो एक गलत कनोटेशन देता है, whereas this is more of service that you talk about, कर्तव्य, राइट. सो यहाँ पे नेम चेंज किया है, 2022 में ये चेंज किया था. इवन वी सॉ कि जो हमारा पार्लियामेंट का बिल्डिंग है ये भी चेंज हुआ है, एंड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग दैट वाज कंप्लीटेड 2 years ago in 2023. So this all comes under the Central Vista Development Redevelopment Plan.
और अभी एक नया बिल्डिंग भी इनॉग्रेट होने वाला है कल, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द कर्तव्य भवन, जहां पे मेजर मिनिस्ट्रीज यहाँ पे शिफ्ट भी होंगी. Let us see what is the major highlights of this particular concept. It is located, जो पहले यहाँ पे था इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, तो इसका ये अर्स्टवाइल साइट था जनपद में, now that is shifted. टोटल 1.5 लाख स्क्वायर मीटर्स का ये एरिया है. एंड कौन सी है कंस्ट्रक्शन कंपनी? इट इज लार्सन एंड टर्बो. ओके, सो इट इज वर्थ 3000 प्लस करोड़ का ये प्रोजेक्ट है. इज दैट क्लियर? Proceeding to the next article. तो वो वन लाइनर जैसा ज्यादा है. Let us proceed to the next article, which is talking about the global plastic treaty talks. Now remember, the global plastic treaty talks ये होंगे आज. कहाँ पे होगा ये? This is happening in Geneva, Switzerland. Okay, Geneva, Switzerland, and this is not the first time we are having this. This is the 5th such intergovernmental negotiation committee. Okay, जिसको INC कहते हैं, Intergovernmental Negotiation Committee. It is called as 5.2. Okay, 5.2 किस लिए? Because इसका पहला पार्ट हुआ था बुसान, okay, that is in South Korea में, alright, and now the second part is happening in Geneva. तो 2 पार्ट्स हुए हैं 5th वाली मीटिंग में. Okay, तो पहला मीटिंग कब हुआ था? The talks actually started in 2022. ओके, जब नाइरोबी यूएन रेजोल्यूशन पास किया था. सो दिस इज द 5th सच मीटिंग, बट ये पार्ट 2 होगा. दिस इज गोइंग टू बी इन जिनेवा. पार्ट 1 वाज इन Busan, South Korea. Now, what exactly is the aim of this particular global plastic treaty talks? इनका काम है mainly to negotiate on a legally binding global plastic treaty. हम चाहते हैं कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है ये खत्म करे, ये एंड करे. ओके, एंड वी नो इस बार का जो एनवायरमेंट डे जो होता है 5th जून को, राइट, 5 जून को हुआ था 2025. इस बार का जो थीम भी था वो भी था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, राइट. सो इन दैट केस वी से दैट वी आर टेकिंग दिस सीरियसली विद द हेल्प ऑफ दीज टॉक्स एज वेल. तो बहुत सारे कंट्रीज, यहाँ पे अराउंड 190 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग, कमिंग टुगेदर. नाउ ट्रीटी कवर करेगा विद रिगार्ड टू द एंटायर लाइफ साइकिल फ्रॉम प्लास्टिक्स, प्रोडक्शन से लेके उसके डिस्पोजल और रिसाइकलिंग तक. इज यू नो हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक्स. नाउ पिछले टॉक्स जब हुए थे इट वाज नॉट वेरी फ्रूटफुल, ओके, बिकॉज इन्होंने कुछ इश्यूज रिजॉल्व नहीं किए थे. सो विच आर द अनरिजॉल्व इश्यूज? कि पॉलीमर प्रोडक्शन पे कितना कैप होगा, एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, फेजिंग आउट ऑफ प्रॉब्लमैटिक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ये सब डिस्कशंस रिजॉल्व नहीं हुए थे. सो प्रोबेबली इस मीटिंग में कुछ होगा कि नहीं, वी आर गोइंग टू सी इन मे बी द कमिंग टाइम्स. Okay, so when was the first ever talks that happened? When did it start with regard to plastic treaty के बारे में? The answer is Nairobi, right? और Nairobi is the capital of Kenya. Now, अगर ये adopt होगा, it is said that it will be one of the most significant global environment agreements, of course, after the Paris Agreement, जो climate change से related है. So we've seen already about Paris Agreement. 2015 में था, वो climate change के लिए था. Whereas these are for plastic pollution को end करने के लिए. Now, according to data, according to Lancet report, ये कहता है कि ये हमारे लिए कितना हानिकारक है, health dangers क्या है. This is with regard to plastic will cause among all groups, okay, approximately 1.5 trillion का ये health related losses हो सकता है if we don't take this seriously. So यहाँ पे कुछ countries जैसे कि oil या oil dependent countries या with regard to you know the rich countries, ये नहीं चाहते कि plastic production पे cap लगे. Whereas there are some countries like ambitious countries like we talk about Rwanda या Mexico, ये कहते हैं कि production पे cap लगा. इंडिया का क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, इंडिया यहाँ पे चाहता है कि वी ऑफ कोर्स आर ट्राइंग टू रिड्यूस द प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड पोल्यूशन, बट मेजर फोकस यहाँ पे पोल्यूशन कम करने में कर रहा है, नॉट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कमी. पोल्यूशन कमी,
not directly production कमी. So यहाँ पे it is saying that कि consensus based treaty होनी चाहिए. This is what is India say with regard to the global plastic treaty. अभी हम देखते हैं आगे कि जब ये मीटिंग हो जाती है, आज से स्टार्ट होती है, we're going to see what is the future of this particular treaty. Proceeding to the next article. अगला आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है saying that जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं इनके पास पावर होंगी to impose restitutionary damages. Now you may have a question, what do you mean by restitutionary damages? So consider this कि कोई आपके लैंड में एक ठेला या एक सॉर्ट ऑफ अ शॉप ओपन कर रहा है ना, उस शॉप की वजह से उसको 1 लाख का प्रॉफिट मिला. ओके, बट ये लैंड तो आपकी है. सो यहाँ पे इस पे रेस्टिट्यूशनरी डैमेजेस अगर हम लगाएंगे इस शॉप पे, तो 1 लाख का जो उसको प्रॉफिट मिला वो होगा रेस्टिट्यूशनरी डैमेज. आई मीन कि रेस्टिट्यूशनरी डैमेजेस दे आर मेनली ऑन द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द कंपनी. द प्रॉफिट्स पे उनको पेमेंट देना पड़ता है. Whereas we also have something called as compensatory damage. Compensatory मतलब क्या? जो आपको नुकसान हुआ है उस शॉप की वजह से, उसको बोलते हैं compensatory. So अगर तुम पैसे लेते हो उसके तुम्हारे लॉसेस की वजह से, that will be called as compensatory. तुमको अगर पैसे मिलते उसके प्रॉफिट्स की वजह से, कितना उसने कमाया, तो उसको बोलते हैं restitutionary damages. I hope these two terms are very clear. Now coming to understand what exactly is this article all about. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रूल किया है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, so you must have heard the सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और हर स्टेट में you have the state पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लाइक गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. सो ऐसे करके बहुत सारे स्टेट्स में भी द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं. तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उनको ज्यादा पावर देती है, इट इज इंक्रीजिंग द पावर्स कि वो इम्पोज और कलेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे डैमेजेस, ऐसे पैसे. ओके, सो डैमेजेस टू बी यूज्ड टू रिस्टोर. तो ये डैमेज कलेक्ट करके, पैसे कलेक्ट करके ये कहाँ पे इस्तेमाल करेगी? ये इस्तेमाल करेगी विद रिगार्ड टू रिस्टोरिंग पोल्यूटेड एयर एंड water bodies, okay, with regard to their original pristine state. तो जो भी पैसे आएंगे वो रिस्टोर या बेटर करने के लिए the rivers and air in that matter यूज करेंगे. What is the legal basis for power? कहाँ से उनको पावर डिराइव होता है? This will be under section 33 under the Water Act and section 31 of the Air Act. Water Act आया था 1974 में और Air Act आया था 1981 में. Okay? So बोर्ड्स यहाँ पे डिसाइड कर सकती है कि कितना मॉनेटरी पेनल्टीज इन पे लगाएंगे. ओके, सो हाउ मच टू इम्पोज, एंड दे कैन कलेक्ट इट एज वेल. For the demand bank guarantees as ex ante measure. Ex ante मतलब forecast, अंदाजे से वो collect करेगी, not on actual amount but अंदाजे से. Okay, so ex ante measures for potential damage. So that exactly talks about. Let's discuss about pollution control board, and हम center का discuss करते हैं, Central Board Pollution Control Board. So it is a statutory organization, यानी कि ये एक act of the parliament से बना है. Which is this act? It is Water Prevention and Control of Pollution Act of 1974. Because ये body 1974 में बनी थी, and we know कि जो Water Act है ये 1978 में बाद में आई थी, right? We've seen this in this particular case कि 81 में आई थी, 1981 is Air Act, Water Act is 74. तो ये Water Act, because ये Water Act पहले आया था. Now, what is the power of this? It is entrusted with what powers? It also works under the functions under the Air Act as well. Okay, तो Water Act से बनी थी, but जो functions है इसको Air Act से हम देते हैं. Further, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो yes, it is Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंदर ये काम करती है. So it gives field information, technical services, okay, and also provisions of Environment Protection Act of 1986. Now यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं.
currently which is the most polluted country in the world, okay, according to the data that we have, the AQI से rated या world air quality index से related, और इंडिया का रैंक क्या है इसमें, ये भी आपको बताना है. So these are the two questions that you have to answer with regard to the most polluted country and what is India's rank. Proceeding to the next article. Now we see Jammu Kashmir was earlier a state, but अभी एक यूनियन टेरिटरी है. So all these changes कब हुए थे? The changes happened on 5th August 2019. तो इस बात को 6 साल पूरे हुए हैं. 6 years after the state has now become a UT and there were a lot of changes that happened in this region. तो 6 साल पूरे हैं, इसके लिए ये आर्टिकल है. Let us see quickly the important points that we have to know for our exam. So Article 370, पहले इसको एब्रोगेट किया, ओके, इसको ले लिया, इसको बंद कर लिया, एंड दिस वाज ऑन एज वी सेड August 5th 2019, जिसके कारण जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था, इट वाज डिवाइडेड और रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, दैट इज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. फर्दर 6 साल के बाद व्हाट इज द सिचुएशन, इस आर्टिकल में कवर किया है. So we see that political activity, elections हुए थे, state elections आपने सुना होगा, and we have national conference जिन्होंने government form किया है. इनके अभी chief minister है ओमार अब्दुल्ला. Okay, so all this we understand कैसा, it's back to normal now, but यहाँ पे कुछ aspects जैसे कि पुलिस और सर्विस ये नहीं आती है इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी ओमार अब्दुल्ला के पावर में नहीं आती है, द गवर्नमेंट के पावर में नहीं आती, बट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओके, द लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर में आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर में आती है. सो लेट अस सी हाउ हैज द सिचुएशन इंप्रूव्ड और चेंज्ड इन जम्मू कश्मीर after the abrogation of Article 370, which gave enough powers to Jammu Kashmir earlier than 2019. तो हम देखते हैं यहाँ पे वायलेंस जो है ये डिक्लाइन हुआ है, लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे कम हुआ है. यू कैन सी 129 था बैक इन 2019, बट इट हैज मूव टू जस्ट 1. इंसिडेंट्स जो होते थे पहले, लाइक स्टोन पेल्टिंग, पत्थर मारते थे, अबडक्शंस, किडनैपिंग और सब, ये भी अभी 0 है. फर्दर हम देखते हैं जो पहलगाम टेरर अटैक, इट वाज द फर्स्ट सच अटैक आफ्टर the 2019 के बाद अगर हम देखते हैं, and this is the only attack this year if we talk. Of course there were small attacks as such we know, but at a larger scale हम देखते हैं this was the first attack this year जहाँ पे 26 civilians मारे गए, 25 Indian nationals के थे, एक नेपाल citizen था. All 3 पाकिस्तानी attackers जो यहाँ पे involved थे, they were also killed. Now what was the operation under which they were killed? Please write that in the comment section. Operation का नाम क्या था? To kill or to target these Pahalgam attackers. Please use the comment section to answer. Apart from that, इकोनॉमी की बात करें, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट स्कीम, ओके, जहां पे अट्रैक्ट किया अबाउट 1.63 लाख करोड़, ओके, तो इतना यहाँ पे पैसा भी आ रहा है. रेवेन्यू कलेक्शन यहाँ पे ज्यादा हो रहा है. जीएसटी की बात करें, एक्साइज की बात करें या एनी अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें, दिस हैज बीन ऑन अ राइज. जीडीपी भी डबल हुआ है from 1.17 to 2.63. Now, of course, you don't need to know the data, but this is to understand the situation in Jammu Kashmir has improved. लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत यहाँ पे पैसे पंप इन करती है with regard to Jammu and Kashmir. Okay, so they give a lot of money to this particular union territory. पावर सेक्टर्स में भी बात करें तो हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल कर रहे हैं. सो पावर सेक्टर के लिए भी दिस इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट. एंड द लास्ट वन, टूरिज्म. ओके, ऑफ कोर्स पहलगाम टेरर अटैक के बाद यहाँ पे थोड़ा टूरिज्म का प्रॉब्लम या अनसर्टेनिटी जरूर आई है, बट इसके पहले की अगर हम बात करें, देयर वर अबाउट 2.11 करोड़ सच टूरिस्ट दैट केम टू कश्मीर. 7% ऑफ द जीडीपी इसने कंट्रीब्यूट किया है. एंड अगर हम देखते हैं 2019 के बाद 75 सच न्यू डेस्टिनेशंस हैव ओपन्ड. 2000 से भी ज्यादा होम स्टेज हैव बीन coming. तो यहाँ पे आप देखते हो this particular region is booming with regard to security, economy, power या tourism. Now let us understand इसका
इससे आगे क्या हो रहा है। नाउ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे है अंडर ओमर अब्दुल्ला, ये आवाज उठा रहे हैं फॉर कंप्लीट स्टेटहुड, दे वांट टू बी बैक एज अ स्टेट। अभी ये यूनियन टेरिटरी है, तो इसके बारे में कुछ चीजें पता करनी है कि कैसे बन सकता है ये स्टेट, क्या ये पॉसिबल है। लेट अस अंडरस्टैंड। सो वी सॉ दैट अगस्त 19 में we had a new act that came up, which is the Jammu Kashmir Reorganization Act, which divided the state into two union territories, Jammu Kashmir and Ladakh. तो दो हिस्सों में हमने उसको डिवाइड कर दिया। Now in this case we see that center के पास अभी एक ज्यादा कंट्रोल है, because now it is a union territory, right? तो कंट्रोल कैसे है? Because यहाँ पे जैसे गवर्नर्स होते हैं, यहाँ पे we have लेफ्टिनेंट गवर्नर। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर how is he different from a जनरल गवर्नर? जो गवर्नर्स होते हैं अलग स्टेट्स में, लाइक राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, how are they different from a lieutenant governor? The lieutenant governor has more powers, okay, which we are going to see now why. तो वापस से स्टेटहुड का डिमांड्स अभी बढ़ा है, बिकॉज दे डोंट लाइक सेंटर्स इंटरफियरेंस इन इंपॉर्टेंट मैटर्स, लाइक वी सॉ पुलिस या सर्विसेज की बात करें, यहाँ पे सेंटर के पास ज्यादा पावर आती है। सो स्टेटहुड क्यों चाहिए? व्हाट वुड दैट मीन? लेट अस अंडरस्टैंड। सो दिस विल एम्पावर द इलेक्टेड सीएम एंड गवर्नमेंट। ओमर अब्दुल्ला और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल हैव पावर्स। याद रखना, जम्मू कश्मीर हैज एन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। अभी तक सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज के पास है एसएलए, जो है दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, ओके। Whereas Ladakh does not have an SLA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। बट फिर भी हम देखते हैं कुछ पावर्स एलजी के पास ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स दैट वी सी। तो जब ये स्टेट बनेगा, मतलब एलजी का पावर्स कम होगा। सो एलजी अभी क्या क्या पावर्स होल्ड करते हैं? दे हैव फाइनल से ऑन लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। एज पर सेक्शन 53 ये कहता है कि इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स ज्यादा होते हैं। एज वी सॉ, पुलिस या पब्लिक ऑर्डर किसके कंट्रोल में है? अगेन एलजी के कंट्रोल में है। तीसरा, blocking financial legislation, okay. So this is again, unless of course it is recommended by LG, they have the power to also block any such financial powers. Understood? Now currently the assembly cannot introduce bills without involving, which is like taxes की बात करें, expenditure की बात करें, monetary matters की बात करें, without LG's recommendation, without LG's nod. तो यहाँ पे पैसे अगर निकालने हैं या अलग टैक्सेस लगाने हैं, you don't have that power. So that is why अगर ये हट जाएगा, then it will be very easier for the central, for the elected CM and the government to bring about more laws, and उनके कंट्रोल में आएगा। अभी कंट्रोल किस में है? द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके पास ये ज्यादा पावर आता है इस स्टेटहुड, इस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के लिए। Now how can it become a state, वो भी देखते हैं। So let us see how can it become a state from a UT? State कैसे बन सकता है? It will be by an act of parliament by the repeal of Jammu and Kashmir Reorganization Act, जो आया था 2019 में। Further, नया बिल इंट्रोड्यूस होगा, okay, it will be needed to be introduced, and this will be passed in both Lok Sabha and Rajya Sabha with of course a simple majority, okay, because ये कोई amendment नहीं है, ये बस एक act को रद्द करना है, right? So simple majority से ये हो सकता है। Further, कौन से आर्टिकल में कहा है कि तुम स्टेट्स को का बॉर्डर्स चेंज कर सकते हो? विच आर्टिकल इज इट सेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अलाउ करता है कि नए स्टेट्स फॉर्म हो। लाइक स्टेट्स के अंदर अगर चेंजेस करने हैं, वो आते हैं आर्टिकल 3 के अंदर। सो आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, या चेंज करना द एग्जिस्टिंग वन, जैसे कि हमने कैसे आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कह के 2 स्टेट्स बनाए थे, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो ये आया था आर्टिकल 3 के अंदर। फर्दर अगर हम ये कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, यू रिमेंबर दैट प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे जब मैं प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ, इट मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, राइट? दोनों का यहाँ पे सहमति होना चाहिए, इनका एडवाइस चाहिए, ओके, एंड वो बाइंडिंग रहता है प्रेसिडेंट पे। सो व्हेन आई एम सेइंग प्रेसिडेंट, आई मीन पीएम एंड सीएम, COM, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
also. So जब तक ये सेंट्रल का नोड नहीं रहेगा, फॉर जम्मू कश्मीर टू बिकम अ स्टेट थोड़ा मुश्किल है, राइट? सो इफ यू सी दैट पहले क्या कोई यूनियन टेरिटरी स्टेट बना है, द आंसर इज यस. इफ यू सी हिमाचल प्रदेश की बात करें 1971 में, या 1972 मणिपुर एंड त्रिपुरा की बात करें, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम की बात करें 1987, गोवा ऑल्सो बिकेम अ स्टेट दैट इज इन 1987. ओके, सो अब देखते हो ये जब थे यूनियन टेरिटरीज थे, दे बिकेम स्टेट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर दैट वी हैव. तो जम्मू कश्मीर को भी बनना है, इट हैज टू फॉलो दिस प्रोसीजर. इज दैट क्लियर? प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये दिया गया है द हिंदू में under the text context issue, and they are talking about the IAF. Okay, now what exactly we're talking about? The Indian Air Force में ये जो MiG-21 है ये रिटायर होगा, यानी कि ये जो MiG-21 जो फाइटर जेट्स हम यूज करते थे, they are going to be set to retire after over 60 years. 6 decades के बाद ये सर्विस से जाएंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर. ओके, इस साल ही ये बंद होगा. तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं. What exactly is this? So it will retire, as we said, from the Indian Air Force in 2025 इस next month में, and farewell होगा इसका proper, you know, the decommissioning and everything happens in चंडीगढ़. और पहले ये कब इंट्रोड्यूस किया था? In 1963. ओके, सो नाउ कितने फाइटर जेट्स होंगे, स्क्वाड्रंस होंगे? अबाउट 29 होंगे. इफ यू कंपेयर विद चाइना, चाइना हैज अबाउट 1300. ठीक है, तो कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा यहाँ पे हम देखते हैं देयर इज डिफरेंस. नाउ MiG-21 किससे लिया था? एज वी सेड, उस टाइम पे तो सोवियत यूनियन था इन 1963 में, राइट? सो तभी हमने इंडक्ट किया था, स्पेशली ड्यूरिंग 1962 वॉर के बाद भी रिक्वायर्ड दीज फाइटर जेट्स. इसीलिए this is the timeline is kind of matching. इंडो चाइना वॉर जो 1962 में हो, उसके बाद हमने इनसे ले लिया. Now remember this was the first supersonic and non-western jet. पहले हम सिर्फ वेस्ट से लेते थे, यूरोप या अगर हम यूएस की बात करते हैं वहां से अपने ज्यादा रिलायंस था, लेकिन now we started taking also from Soviet Union. So that is a very important, talks about a relationship also with Russia in that regard. तो about 872 such MiG-21s थे, एंड यहाँ पे लाइसेंस भी मिल गया था HAL को, ओके, टू बिल्ड इट हियर एज वेल. Okay, now it is also called as a flying coffin. Okay, so they ask you flying coffin किस space aircraft को कहते हैं? That is with regard to MiG-21, because देखो 450 such accidents, and now when I'm talking about accidents, think about the lives that were lost because of this aircraft. Okay, so many families have lost their breadwinner. Okay, they have lost their we have lost our brave heroes because of these accidents, which is why it is called as the flying coffin. हम देखते हैं बहुत सारे वॉर्स में इसका इस्तेमाल हुआ है. इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 65 या 1971 में, या कारगिल वॉर की बात करें 1999 में, this has been used. Even in the recent 29 जो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स थे, जहाँ पे हमारे एक सोल्जर जो है अभिमन्यु वर्धमान, राइट? सो इन्होंने बिफोर ही गॉट कैप्चर्ड, ही वाज फ्लाइंग दिस MiG-21. ही हैड एक्चुअली अटैक्ड विद दिस MiG-21. सो दिस टॉक्स अबाउट कितना इन्होंने ये जो सपोर्ट किया है हमको ये MiG-21 ने एज वेल. एंड ऑफ कोर्स 30+ कंट्रीज इसका इस्तेमाल भी करते हैं. फर्दर अभी कौन से एयरक्राफ्ट इनको रिप्लेस करेंगे, कौन से एयरक्राफ्ट यूज करेंगे इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी यूजिंग MiG-21? द आंसर इज apart from MiG-21, okay, because we have taken from other countries as well. जैसे कि जैगुआर या मिराज की बात करें, ये फ्रांस से है, MiG-29 रशिया से है, तो ये भी सून फेज आउट होगा और हम यूज करेंगे इंडिया से बने हुए यानी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट. नाउ दैट इज द LCA, ऑल्सो कॉल्ड एज द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. Su-30 या Sukhoi 30 आपने सुना होगा, ये भी रशिया से है. ओके, एंड देन वी ऑल्सो हैव MRFA, विच इज अ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट या एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. तो ये भी हम यूज करेंगे. मोस्ट ऑफ देम आर इंडिजीनियसली
प्रोड्यूस। सो हम देखते हैं कि हमारा जो रिलायंस है दूसरे कंट्रीज पे ये कम करना चाहते हैं। नाउ करेंटली इफ यू रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट ऑफ द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया का रैंक सेकंड है विद रिगार्ड टू द नंबर ऑफ इंपोर्ट्स, डिफेंस इंपोर्ट्स हम लेते हैं, तो हमको इसको कम करना है। हम पहले फर्स्ट रैंक पे थे, अभी जाके सेकंड पे आए हैं, एंड प्रोबेबली वी वांट टू रिड्यूस दिस टू इवन फर्दर लोअर। ओके, हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते, हम इनफैक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज नहीं तो पूरा पैसा यहाँ पे डिफेंस में ज्यादा जाता है, राइट। सो हम देखते हैं कि हम सबसे ज्यादा किस कंट्री से भी लेते हैं, द आंसर वुड बी रशिया। ओके, पहला रशिया में आता है, रशिया से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हम खरीदते हैं। इसके अलावा वी आल्सो टेक फ्रॉम फ्रांस व्हिच लाइज इन द सेकंड पोजीशन, एंड विद रिगार्ड टू यूएस व्हिच लाइज इन द थर्ड पोजीशन। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू शुड बी नोइंग फॉर योर एग्जाम। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। रिसेंटली आपने देखा होगा मंडे के दिन we have seen ex-CM of Jharkhand, जिनका नाम है शिबू सोरेन, he passes away. Right now, why is he important? Is he is a very important leader with regard to Jharkhand politics. ओके तो ये इंपॉर्टेंट ट्राइबल लीडर थे झारखंड को आइडेंटिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल पहले झारखंड ओके वाज फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। जो ट्राइबल्स थे, जो पीजेंट्स थे, दे वर अगेंस्ट द आउटसाइडर्स दैट वर कमिंग बिकॉज दे वर एक्सप्लॉइटिंग देयर लैंड, दे वर चेंजिंग द आइडेंटिटी। सो हम देखते हैं कि शिबू सोरेन 1970s में इन्होंने 1972 टू बी प्रिसाइज, इन्होंने मूवमेंट भी चलाया। he started own political party called as झारखंड मुक्ति मोर्चा। ओके 1950s में there was a झारखंड मूवमेंट, बट वो थोड़ा सबसाइड हुआ। 1970s में इन्होंने इनके यू कैन से वर्क की वजह से he was able to start again 1970s में the movement for झारखंड under झारखंड मुक्ति मोर्चा। he gave the slogan लालखंड झारखंड, लालखंड झारखंड, रेड झारखंड। so इनका काम था like he wanted to bring together the class struggles as well as the caste and the tribal struggles। तो जो भी लोगों के problems हैं, he wanted to get that together, he wanted to fight for Jharkhand, and finally with all the efforts he also became firstly लोक सभा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे इन 1980। ही सॉर्ट आउट अलायंस विद इंदिरा गांधी एज वेल, तो बहुत सारे लीडर्स के साथ उन्होंने कैसे अलायंस भी किया। एंड वी सी दैट फाइनली झारखंड गेट स्टेटहुड ऑन 15th of November 2000। So that is why he is a very influential leader, बहुत सारा इन्होंने काम किया है, and therefore we see इनके बारे में आर्टिकल बताया है। Let's now proceed to the next article. Next article that we have is called the Rhizotope Project. Now Rhizotope Project किस country का है? It is with regard to South Africa. Now this is not a new article. We had also seen this last year. So जानते हैं कि इस particular article में क्या important चीजें बताई है। Now what is this Rhizotope Project? ये दो words का join करता है, एक है rhinos and isotope. Okay, so what exactly does this do? ये बंद करना चाहता है या डिटर करना चाहता है विद रिगार्ड टू द राइनो का इलीगल ट्रेड, राइनोस का पोचिंग। ओके, ये बंद करना चाहता है, डिटरिंग द राइनो पोचिंग बाय मेकिंग जो उनके हॉर्न्स हैं डेंजरस एंड डिटेक्टेबल by to humans by using certain radioactive isotopes। तो ये कुछ टैगिंग करते हैं जिसके कारण तुमको पता चलता है कि कोई ये हॉर्न्स इलीगल किया, इलीगली ट्रेड हुआ है कि नहीं। Now who has done this and where is this done? This is done under the Waterberg Biosphere Reserve। इस लोकेशन पे ये किया है the Rhizotope Project, और इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं the University of Witwatersrand, okay, Witwatersrand, and this is also supported by the International Atomic Energy Agency। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। It was formed on 29th July 1957। इसका हेडक्वार्टर्स है वियना ऑस्ट्रिया में।
and who is the CEO of this IAEA? You are going to tell me in the comment section. Is that clear? Further, what are we going to do in this project? Procedure ये है कि 5 rhinos को यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है radioactive isotopes, and remember ये इंजेक्शन जैसा नॉन इन्वेजिव है, so it's probably like a patch that they use to get the radio isotopes into it. Low dose इसका इस्तेमाल करता है, and this is not harmful to the animal but it could be harmful to the humans. Okay, so these isotopes are absorbed in the keratin in the जो rhino के horns में it takes in, but it is not harmful to the animal, but it can be dangerous to humans because ये एक radioactive material है. Now यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि why we specifically targeting rhinos. So we have a data called as World Wildlife Crime Report. Now again, remember World Wildlife Crime Report, ये report is given by the United Nations Office of Drug and Crime. United Nations Office of Drug and Crime, जिसका headquarters वापस से वियना ऑस्ट्रिया में ही है. Okay, so United Nations Office of Drug and Crime ये report देती है called as World Wildlife Crime Report, which says the most illegally trafficked animal species कौन सी है and the most illegally trafficked plant species कौन सी है. Now you are going to tell me which is the most illegal animal and plant species according to the wildlife crime report. ये आपका duty है because we have already done this in the previous few months. Is that clear? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है. लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे. लास्ट आर्टिकल की बात करें तो हम देखते हैं कि एक वियतनामीज मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ओके, जिसका नाम है विनफास्ट. इन्होंने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया है. Now these type of questions are typical for asked in your A-Lit, so you should know this as a one liner only. तो याद रखना, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने ये इनॉग्रेट किया है, which is the VinFast first electric vehicle manufacturing plant. It is going to be located in Thoothukudi. Okay, this is at the Sipcote Industrial Complex in Silantham. ठीक है. सो व्हाट इज सीएम स्टालिन सेइंग अबाउट चेन्नई? इसको उन्होंने क्या नाम दिया है? इंडियाज डेट्रॉइट. सो दे कैन आस्क यू इंडियाज डेट्रॉइट हैज बीन कॉल्ड एज व्हिच सिटी ऑफ इंडिया. तो आपको याद रखना है चेन्नई को इन्होंने बोला है. व्हाट इज डेट्रॉइट? डेट्रॉइट इज अ प्लेस इन यूएस, इट्स अ सिटी इन यूएस नोन फॉर अगेन मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो इसने बोला कि इंडिया का ये डेट्रॉइट है. ओके, सो गिविंग सम रिलेशन. 40% की अगर हम बात करें जो ईवीज सेल करते हैं हम, वो मैन्युफैक्चर होता है तमिलनाडु में. सो दिस इज गोइंग टू बूस्ट इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इट्स गोइंग टू बी रिलायंस ऑन क्लीन टेक्नोलॉजी. ये तो है ही, पर इसके अलावा जॉब्स भी क्रिएट करेगा ये. ओके, मैन्युफैक्चरिंग जब हम करेंगे ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि it is going to help in the economy as well. GDP growth होगा. So हम देखते हैं कि about hundreds of local youth have also been employed by this VinFast. Okay, under their skill training initiative of Tamil Nadu called as Nan Mudalvan. ठीक है. और यहाँ पे about 50,000 vehicles per year production होगा capacity, and that is of course going to increase to 150,000 is what we understand. तो यहाँ पे one liner आपको याद रखना है कि जो वियतनामीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग first plant has been installed in Tamil Nadu in the place called Thoothukudi. Okay, that is all with regard to today's current affairs. I hope you have got all the important and necessary information. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.